Hello friends, I Purushottam Maurya welcomes you on this A to Z Exam Guru YouTube platform. Today we will study about height and distance. So see, this is a general figure for understanding what is angle of elevation and what is angle of depression. First of all, if your eye is at point C and you are seeing upward, right? This is called angle of elevation. This angle C is called angle of elevation. But if your eye is at point A and you are seeing below, right? This side at point towards point C, then this angle A is called angle of depression. And note that angle angle ACB ACB always equal to angle DAC. This point is very important point, right? Very important point in this case. So to understand this, we will solve some question. So let's take some question. The very first question is the angle of elevation of the top of tower from point P and Q. Write down question. The angles of elevation of the top of tower from 2 points P and Q, from 2 points P and Q at distance A and B respectively. At distance A and B respectively from the base and in the same straight line, from the base and in same straight line, and in same straight line, same straight line with it are complementary. Prove the height of the tower is. Prove the height of tower is root EB. Right friends? So let us draw the diagram. It means simply, if you try to solve this question, right friends, simply suppose that this is a diagram, right? It is point P and let's take it is point Q. If it makes angle theta, then this angle will be 90 minus theta, because two are complementary to each other. Let's it is distance A and let's it distance is B, and this is height h. Nomenclature it P, let's it is Q, is R, and this is S. Right friends? So in triangle S, R and P, in triangle S, R, P, S, R and P, tan theta perpendicular upon base H upon A, and in triangle SQR, SQR,
tan 90 minus theta equal to h by v. It is 1 and it is 2. Right friends? So it is cot theta h by v, equation third. By multiplying equation first and third, what we will get? Tan theta into cot theta on h upon a equal to h by v, and that's equal to h square upon av equal to 1, and finally h equal to under root a. Right friends? This is h equal to root a. Hence proved. Let's move to solve the next question. Right? So next question is, from a point 20 meter away, simply let's understand, if this is a diagram, right? P, point P, this is height h, this 20 meter, right? And this angle is 60 degree. From the point 20 मीटर अवे, इसको कोई पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, राइट? एम यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर 20 मीटर अवे द फुट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री. ये जो टावर है ना, इसकी जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है? 60 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको टावर की हाइट निकालनी है, तो सिंपल क्या करेंगे? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 20, लिख हो जाएगा h इक्वल टू tan 60 को होती है √3, 20 इंटू √3. राइट फ्रेंड्स? तो 20 इंटू 3.1415, ये सिंपली आपको हो जाएगा, सॉरी, ये जो इसकी वैल्यू होती है √3 की, ये होती है 1.732. इसकी वैल्यू होती है 1.732. तो अब हो जाएगा 0, 4, 6, 34.64 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाएगी. आप सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, length of shadow cast by a pole is √3 times the length of pole. Find the angle of elevation of the sun. Right friends? तो आप समझ सकते हो कि जो शेडो है वो ये कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो क्या है? वो 3 टाइम्स है उसकी हाइट की. तो ये समझ लेते हैं कि ये इसकी पोल है और इसकी हाइट है, राइट? ए बी इसकी हाइट है पोल की, और शेडो कौन सी बनेगी? शेडो बनेगी ये वाली. तो ये क्या है? इसकी 3 टाइम्स, √3 टाइम्स, राइट? कुछ एंगल ये होगा. इसका मतलब ये है कि जो BC है, राइट फ्रेंड्स? BC इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ AB, और हमें इसमें से कोई रिलेशन कौन देता है? राइट? ये इसको हम अदर करते हैं, तो tan थीटा जो होगा तो परपेंडिकुलर AB अपॉन BC. यहाँ से अगर हमें AB अपॉन BC की वैल्यू कैलकुलेट करें, 1 अपॉन √3, ये किसकी वैल्यू होती है? tan
डिग्री की वैल्यू होती है, राइट फ्रेंड्स। शो tan theta equal to tan degree, it means simply theta equal to 30 degree. A person standing on the bank of river observes that the angle of elevation of the top of tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 50 meters away from the bank, he finds that angle of elevation to be 30 डिग्री. कैलकुलेट, राइट फ्रेंड्स. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसको जरा आप ध्यान से देखिए, बात समझ आ जाएगी. कुछ ऐसा थोड़ा सा इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए. यहाँ पर क्या है, पहले इसका एंगल जो है 60 डिग्री है. यहाँ से 50 मीटर की हाइट वो और ट्रेवल करता है और आगे बढ़ जाता है, तो एंगल इसका हो गया 30 डिग्री. हाइट उसकी चेंज होगी नहीं, तो हाइट h है तो हाइट h ही रहेगी, राइट. और ये चीज है आपकी x, ये h हो गया, ये x हो गया 50 मीटर. अब हमें कैलकुलेट करना है, इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं. a b, ये c पॉइंट मान लीजिए और ये d मान लेते हैं, राइट फ्रेंड्स. और हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, और अगर हम इसकी विड्थ तो विड्थ भी निकाल सकते हैं, दोनों बातें निकाल सकते हैं. तो पहले हम जो हमारा छोटा ट्रायंगल है, राइट, ट्रायंगल ए सी बी में देखते हैं, इसमें क्या होगी, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एक्स, और tan इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3, तो h इक्वल टू √3x. हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. सेकेंड इक्वेशन क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी बी, tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन 50 प्लस x, राइट फ्रेंड्स. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और h की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ से कितनी होगी, √3x. तो √3x मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3, और इक्वल टू क्या है, 50 प्लस x के. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3x माइनस x इक्वल टू 50. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25. और अगर हम इसमें रखें h इक्वल टू √3x में, h इक्वल टू √3x में, ये वैल्यू हो जाएगी 1.732 मल्टीप्लाई बाई 25, राइट फ्रेंड्स. तो ये आपका हो जाएगा सॉल्व करने के बाद लगभग 43.3 मीटर. So you can solve this type of questions also, and let's try to solve some more questions. Next question is, from the top of a cliff, कोई क्लिफ है, ड्रा कर लीजिए, इसका टॉप है, राइट, top of cliff 19 meter high, from the top of cliff 19 meter high, 19 meter height है. The angle of depression of the top and the bottom of tower, ये टावर है, angle of depression from the top to 19 height, the angle of depression of the top and the bottom of tower to be, the angle of depression of the top
एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ टॉप कितना है, ये आपका 30 है और ये आपका 60 है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इसकी ये जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें क्लिफ की हाइट जो है 90 मीटर गिवन है। राइट फ्रेंड्स, ये हमें टोटल हाइट, अगर हम सिर्फ इतने की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस h। राइट, और जिसकी यूनिट है इसको अगर हम x मान लें तो ये दोनों केसेस में सेम ही होगी। राइट फ्रेंड्स, शो दिस विल बी सेम, जो ये होगा कि ये चीज ये भी होगी। राइट, नोमेनक्लेचर के लिए p q r s t का। तो हमें हाइट निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शो हम लोग क्या करते हैं, इस पहले जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें अप्लाई करते हैं। राइट, तो ट्रायंगल पी टी एंड क्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर 90 माइनस एच अपान एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल टू 90 माइनस एच अपान एक्स। इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 90√3 माइनस h√3 इक्वेशन 1। और जब हम बड़ी वाली लगाएंगे तब क्या वैल्यू आएगी, ट्रायंगल SPR, ट्रायंगल SPR SPR में क्या होगा, 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 90। राइट फ्रेंड्स, 90 अपान और बेस कितना है x, ये वैल्यू कितनी है √3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 90/√3। इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 30 डिवाइड बाई पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30√3। राइट, और अगर हम इसको यहाँ पर रख दें तो हमें हाइट मिल जाएगी। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा आपको, इस वैल्यू को रखेंगे 30√3 इक्वल टू 90√3 माइनस h√3। इसको उस तरह उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी h√3 इक्वल टू 90√3 माइनस 30√3। ये वैल्यू हो जाएगी h√3 इक्वल टू 60√3, और आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू हो गई आपकी h इक्वल टू 60 मीटर। So friends, I hope that this question is also clear to you. Right, this question is also clear to you. So friends, for today class we will end this class over here, and in next class we will solve some more questions. And friends, I would also like to request you that kindly subscribe this channel for latest updates, notification of lectures, and share. Thank you class.